ہے کہ آج اگر غور کیا جائے تو ہم جیسی نوجوان نسل نابلد ہے. شاید یہ اتنا بڑا جرم نہیں. ہمارے نزدیک زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ ہم ان دیوانوں کے مقاصد اور جہد کی اصل کو اپنی روحوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ہم سب اور سب کے سب آج میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک 14 اگست ایک دن ہے جو سال بعد آتا ہے. اس دن جھنڈے خریدے جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں. اس روز سڑکوں پر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہم اپنی عزتوں کے ساتھ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. مذکورہ فوٹیج کو ہی دیکھ لیا جائے. معروف تو یہ بھی ہے کہ یہ برقع پوش لڑکی نہیں لڑکا ہے. میری بلا سے وہ جو بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حرکت سے ہم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. آج اگر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا جائے تو وطن عزیز کی آزادی پر صدقے واری جانے والے ہمارے اجداد کی میراث سے ہمارے پاس صحیح سلامت ہے کیا؟ وطن عزیز کا زمینی ٹکڑا؟ ارے نہیں، وہ تو 50 برس قبل 2 لخت ہو گیا تھا. 1947 والا وطن عزیز کا محبوب نقشہ؟ ارے نہیں، وہ بھی 1971 میں بدل گیا تھا. اسلامی نظام؟ ارے کیا بات کرتے ہیں، وہ تو کبھی قائم ہو ہی نہیں سکا. شاید وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی پرچم وہ واحد میراث ہے آج بھی صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر آج کے پروگرام میں اس قومی پرچم کے تقدس اور حرمت پر ہی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آج اس قومی پرچم کا تقدس آخر ہے کیا؟ اگست کا مہینہ ہر برس ماہ آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے. ان ایام میں جہاں نئے نویلے قومی پرچم خریدے اور لہرائے جاتے ہیں وہیں ہزاروں کی تعداد میں زمین پر گرائے بھی جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے لاہور کی شاہراہوں پر ان پرچموں کی تلاش شروع کر دی جو راستوں میں پڑے تھے اور ایک کے بعد ایک قدم کی زینت بننے پر مجبور تھے. ایک لمحے کے لیے ہمیں گمان گزرا کہ شاید پاکستانی وطن عزیز کے اس عظیم پرچم کو زمین سے شاید اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کہیں گندا نہ ہو گیا ہو. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر گرے پرچم کے ساتھ ایک نوٹ رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر زمین پر گرا پرچم گندا ہو جاتا ہے تو کیا زمین پر گرا نوٹ بھی ایسے ہی گمان کیا جاتا ہے یا وہ پاک، صاف اور قابل استعمال رہتا ہے؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے؟ یہ آپ نے 100 روپیہ اٹھایا ہے سر؟ بالکل جی. نیچے پڑا ہوا تھا جی. اس کے بالکل ساتھ پرچم گرا ہوا ہے، یہی پڑا ہوا تھا. ہم نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے لیے پرچم کے ساتھ یہ نوٹ رکھا تھا 100 روپے کا. بالکل سر. یہ آپ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں رکھنے والی ہمیں پرچم بھی اٹھانا چاہیے تھا. میں نے پیچھے دیکھا، کہیں میں بھائی کو بھی کہہ رہا ہوں کسی ان کا تو نہیں گرا. یہ ایک پرچم نہیں گرا سارا. دیکھیں بات سنیں آپ، اگر میڈیا والے بھی ہیں ہزاروں گرے پڑے ہیں. اچھا، اٹھائے بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کہا ہماری کوتاہی بھی ہے، جگہوں پر نوٹ گرے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہر نوٹ اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ نظر آ گیا ابھی بھی نوٹ اٹھایا؟ دیکھیں نہیں، آپ میری بات سنیں، وہ فٹ پاتھ کے اوپر بالکل پڑا ہوا ہے، جہاں سے گزر وہ بھی فٹ پاتھ کے اوپر پڑا ہوا ہے نا. دیکھیں یہ ہمیں اٹھانا چاہیے نا. نہیں بالکل، یہ پوری روڈ پر جگہ جگہ یہ پرچم ایسے ہی پڑے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم اٹھا رہے ہیں. ایک منٹ سر، ہم نے اٹھایا نا، یہ دیکھو اللہ ہمیں ان سے بھی راضی ہو، چلو آپ سے بھی راضی ہو. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہ یار ایسے آج کسی کو دیکھا ہی نہیں. اچھا، یہ نہیں دیکھا نوٹ بھی نہیں میں نے دیکھا. اچھا، یہ نوٹ کس نے دیکھا ہے؟ یہ اس نے دیکھا. ادھر آ رہا ہے تو بھائی ادھر آ رہا ہے، وہ ادھر سائڈ پہ ہو گئے، وہ مسئلہ ایسے ہی آ رہے ہیں نا. تو بھائی وہ آگے نوٹ بھی آگے ہوا کے میرا کہا آگے آ گیا. اچھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں. آپ نے پھر انہیں روکا کیوں نہیں کہ نوٹ کسی کا ہوگا نہ اٹھاؤ؟ یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات پیچھے انہوں نے آپ کے ساتھ اٹھایا نا. یہ نوٹ پڑا دیکھا ہے نا، اب یہ اٹھایا. یہ جس نے بھی اٹھانا تھا جیب میں ڈالنا تھا.
यार ये परचम ये कहते आजम को हमने उठा लिया, अब ऐसी कहो ये बाबा कहते आजम को उठा लिया। अल्लाह इन्हें भी अल्लाह आपसे राजी हो, जाए आप, जाए ले जाए, ये नोट भी नहीं, ले आप जाए, जाए जाए जाए, आपने रखा, अल्लाह आपसे राजी हो, जाए आप। क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? आपने भी एक 100 रुपए का नोट उठाया फुटपाथ से, उठाया तो आपकी शनाख्त नहीं आप रखें, शनाख्त आपकी किसी को नहीं पता चलेगी। इसके बिल्कुल साथ एक झंडी भी पड़ी, परचम पड़ा हुआ था पाकिस्तान का। आपने परचम नहीं उठाया, नोट उठा लिया, क्या वजह? मेरे से पहले भाई उठा कर दिया। क्या आपने ये नोट उठा लिया, क्या वजह थी? मुझे समझने का मकसद ये है असल के परचम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम नोट उठाते हैं, परचम नहीं उठाते, इसकी क्या वजह है? ये भाई नहीं पता। नहीं, ये आप रखें। हमारा मसला और है, हमारा मसला परचम का इकराम है, परचम का तकद्दुस है। फुटपाथ पर एक परचम गिरा हुआ है, तो क्या हमें वो भी उठाना चाहिए? एक सेकंड जी सर, ये हम आ रहे थे, पहले वो भाई आ रहा था। कौन भाई? वो जो यहाँ खिलौने को बेच रहा था? जी। उन्होंने परचम उठाया, नोट उसने नहीं उठाया। नहीं उठाया क्योंकि वो पहले जा रहा वो साहब परली तरफ निकल गए हैं। मैंने बंदे को भेजा है कि उनको भी बुला लें ताकि हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। हाल है? ठीक है। पहले मुझे बताएं कि कितना कमाते हैं दिन में? दिन में लगे शुक्र मैं 1500 कमा लेता हूँ। 1500 रुपया कमा लेते हैं, मेहनत करते हैं, गर्मी शदीद है। हाँ जी, ऐसे। क्या वजह थी कि आपने फुटपाथ पर चलते हुए नोट देखा आपने पड़ा हुआ? हाँ जी। आपने नोट नहीं उठाया, आपने परचम उठाया। हाँ जी। क्या मोहब्बत, कौन सा जज्बा है? मैं जहाज पे प्याग पाकिस्तान से प्याग करता हूँ। ये पाकिस्तान फौज है, आगे फौज है, माँ के लिए बहुत जान देते हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। ही इज द हीरो। मैं नाज़रीन तमाम लोगों को इनका चेहरा जरूर दिखाऊंगा, पॉजिटिव फेसेस जरूर दिखाएंगे। वो साहिबान जो नोट लेकर गए हम उनका चेहरा ब्लर कर रहे हैं, लेकिन इन साहब का चेहरा हम जरूर दिखा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हीरोज हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो सड़क पर, फुटपाथ पर खिलौने बेचकर अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, मोहब्बत करता है, लेकिन वो वतन अजीज पर का जानिसार है। और शाबाश, अल्लाह आपसे राज़ी हो। रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? आपने भी 100 रुपया उठाया, साथ पाकिस्तान का परचम भी पड़ा था, परचम को फेंक दिया, नोट उठा दिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि क्या परचम की मोहब्बत भी कुछ मोहब्बत है जनाब? ये 14 अगस्त है, 14 अगस्त के महीने में हमें जनाब खसूसी तौर पर समझ लें, चूंकि 15 अगस्त को हमें हर जानिब गंदगी नजर आती है परचमों की जी, और ये बहुत तकलीफ दे चीज। अभी भी मैं आ रहा था, रास्ते में काफी झंडियां वगैरह गिरी हुई थी रोड पे, काफी वो पता नहीं किसने फेंकी है, बाकी वो गलत है। ये हमारे लाहौर की पहचान है, पाकिस्तान का झंडा हमारी पहचान है, हम पाकिस्तानी है खुद, हम इसको ऐसे रोलेंगे तो हम खुद रुल रहे हैं। अच्छा, कितनी दूर से आपको 100 रुपया पड़ा नजर आया था? सही ये अभी नजर आया इधर से, सही बताएं। अभी नजर आया। 100 रुपया आपको नजर आ गया, झंडी नहीं आई? अभी नजर आया, ये ले सर। नहीं, ये मेरा नहीं, ये आप रख लें। 100 रुपया देखिए, मसला क्या है? मसला झंडे का है, मसला नहीं, मसला ये है कि नोट हमें दूर से आंख मार देता है। नहीं, परचम अभी क्यों नहीं नजर मारता? आया जनाब। हमें क्या रवैया रखना चाहिए, खास तौर पर 14 अगस्त के फौरन बाद जब परचम बिखरे होते हैं सड़कों पर, उनको तौहीन हो रही होती है? देख ले तो उठाना चाहिए, उठा के साइड पे रख देना चाहिए, ऊंची जगह पे। अच्छा, ये गलत है, नीचे रोड पे नहीं होना चाहिए। मैं ये हमारी पहचान है, पाकिस्तान का झंडा हमारी मोहब्बत है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो कौन लोग करेंगे? हमारा फर्ज है ये कि हम अल्लाह आपसे पाकिस्तान। राजी हो। 100 रुपया आप रखें, आप जाएं, मेहनत करते हैं। बहरहाल जी, आई डोंट वांट टू डिस्ग्रेस एनीवन, लेकिन एक मैसेज है, एक सॉफ्ट मैसेज है, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मी एंड माय नेशन है, तो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल है?
आपने ये 50 रुपए सड़क से उठाए जी। इससे पहले भी हमने 50 रुपए, ये झंडी एक पड़ी है, अच्छा। उसका आए पहले इसको तो उठाए ना, अच्छा। आज इसके साथ हमने रखा था। अच्छा। आपने आके वार्डन्स को देने की कोशिश की है पैसे, उनको देने की क्या वजह थी? आए वार्डन ने वो लगा रखा जो उठा रहे पैसे, हाँ, मैं क्या शायद उसका है, अच्छा, मैंने उठा दिया ना, हाँ। मैं क्या लगा भाई, उसने कहा कि उठा लो पैसे, हाँ वो क्या रखा जो पैसे है, अच्छा। मैं क्या शायद उसका है, किसने कहा था? जरा ये परचम भी इसके साथ पड़ा था ना, इसको भी उठा लेते। मुझे ये पाकिस्तान का झंडा ये ख्याल नहीं था। है। ये किसका झंडा है? ये किसका झंडा है? मसला क्या है कि अगर ये परचम पड़ा हुआ है तो हमें इसको भी उठा लेना ख्याल चाहिए। नहीं था ना, इसको ख्याल नहीं था। ये 50 रुपए का ख्याल आ गया, ये आपको ख्याल आया कि वार्डन भाई को आया? नहीं, आपको वार्डन ने भेजा ना, हाँ। आपने उन्हें पानी पिलाया, उन्होंने आपको कहा खांडी वो 50 रुपया पड़ा उठा लो, ऐसे ही हुआ ना? ऐसे क्या गलत बात करने का फायदा नहीं, ऐसे हुआ नहीं हुआ तो मुझे बताओ। इन दोनों में से कौन से वाले भाई ने कहा था? इस भाई ने कहा था, इस वाले ने? अस्सलाम वालेकुम सर, ना आपका नाम आ रहा है ना आपका चेहरा आ रहा है, क्योंकि ये कॉज है। हाँ जी। अगर आपको 50 रुपए नजर आए थे तो ये झंडा भी नजर आना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पर पता नहीं कितनी देर से पड़ा है, हमने झंडा पड़ा देखे, हमने उसके साथ जाके पैसे तो मुझे 50 रुपए नजर आया, झंडा नजर आया नहीं। 50 रुपए आया, आपने खांडी को कहा कि जाके उठा ले, हाँ जी। और दोनों इकट्ठे पड़े हैं। हमें आइंदा ऐसा करना क्या चाहिए कि अगर परचम कहीं गिरा पड़ा हो हमें उसको उठा लेना चाहिए? परचम तो किसी सूरत में जब भी पड़ा हो तो उठाना चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को हर जगह यही प्रॉब्लम होता हाँ, है। ये तो अल्लाह करे इस साल ना हो। ये साहब पता क्या है, हमारी तो ट्रेनिंग में ये शामिल होता है, इस परचम की रिस्पेक्ट अल्लाह सबसे राज़ी, पहले। अल्लाह राज़ी। ठीक है, बाय गॉड अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये आपने उठाया, मुझे वो भी नजर नहीं है। मैंने जब आपने जाके उसको पिक किया है ना परचम को, फिर नजर आया कि वहाँ पर परचम भी पड़ा हुआ है। लेकिन 50 रुपए नजर आ गए ना। सुन ले मेरी मसला समझे मेरे भाई। मामला तरीकाकार का, मेरी बात सुने। वो अगर हमें नजर आता तो 50 रुपए भी हम उसको ना कहते कि जाके उठा लो, वो भी हम खुद उठाते। जाके खुद ये परचम उठाते पहले। खान साहब, आपको इन्होंने कहा 50 रुपए उठाने को, सुन लेना, जायज बात। जब मियां साहब जब नहीं नजर आया ना तो ये बाय मिस्टेक अच्छा, परचा, हाँ, by है। अगर mistake, खुदा अल्लाह न करे खास्ता ये नजर आता बाय गॉड कि इसको चूमते, अपने दिल में रखते। माशाल्लाह, क्योंकि आपने नोट उठाया, परचम नहीं उठाया, तो फिर पैगाम दे। गलती हो गया, गलती मांगता है, गलती मांगता है। गलती हो गया, अल्लाह आपसे राज़ी। जीते रहे, गलती हो गई। जीते रहे। अगर आईने पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो वतन अजीज का सबसे लाली परचम हमारी उमंगों का अमीन है। ये मुकद्दस परचम अपनी अहमियत और रोशन तारीख रखता है। ये जहां बराबरी का जामिन है, वहीं अक़वाम आलम में हमारी और आपकी पहचान भी है। लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले को देखा जाए तो कौमी परचम की हुर्मत के हवाले से कवायद ज़वाबित भी वाज़ेह हैं। कौमी परचम का प्रोटोकॉल है कि इस पर तारीकी की परछाई न पड़ने पाए, लेकिन हमारे यहां यह मामला मामूल की मामूली सी बात है। लेकिन मेरे नजदीक ये जुर्म और भी बड़ा हो जाता है जब ये कोई आम आदमी अपनी जहालत में नहीं बल्कि खुद रियासती इदारे और जिम्मेदारान कर रहे हों। पाकिस्तान रेलवेज वतन अजीज के मवासलाती निजाम में रीढ़ की हड्डी गुमान की जाती है। यहां परचम के तकद्दुस के हालात कुछ इस तरह हैं। वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस के हवाले से टीम लाहौर पूछता है आज मौजूद है वतन अजीज के सबसे बड़े समझे जाने वाले रेलवे स्टेशन पर, यानी लाहौर रेलवे स्टेशन पर। तो गुमान ये है कि यहां वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस का खूब ख्याल रखा जा रहा होगा। वजह क्या है कि कानून तो पहले वाज़ेह था, लेकिन अब मुअज़्ज़िज़ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, तो शायद जिम्मेदारान ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हो। लेकिन ये क्या, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये सब हिलाली परचम यहां मौजूद है और ये उस वक्त मौजूद है जब इस परचम को यहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। यानी कानून के मुताबिक और अदालती फैसले के मुताबिक अगर सब्ज हिलाली परचम पर तारीकी की परछाई पड़ती है तो ये कानूनन एक जुर्म है जो काबिल सजा है।
ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے جو اس سبز ہلالی پرچم کے تقدس کا خیال رکھے، کیونکہ میرا قانون اور میری عدلیہ کے نزدیک یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ سبز ہلالی پرچم کی تضحیک ہے۔ تو میں دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا وزیر موصوف محترم جناب اعظم سواتی صاحب سے، تنقید ہے بری لگ سکتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی انڈیویجول اس ذمہ داری کے لیے نہیں ہے تو جناب والا تھوڑا سا وقت نکالیں، خود آیا کریں اور اس پرچم کے اکرام، اس کے تقدس کا قانون اور آئین کے مطابق خیال رکھیں۔ لاہور کی بات کریں تو کمشنر لاہور کی سربراہی میں چلنے والا میئر لاہور اور لوکل نمائندگان کا گھر یعنی ٹاؤن ہال بھی ایسی ہی بدبختی کا شکار ہے۔ کب میں جو عمارت موجود ہے اس کو ٹاؤن ہال کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پرائم عمارت، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں بڑا کہ تو بڑا کی ضد میں یہ عمارت بھی عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکی، یعنی یہاں پر محاذ آرائی رہی کمشنر لاہور اور میئر لاہور کے درمیان۔ میئر لاہور چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں اور کمشنر صاحب سرکاری ملازم ہیں، تو جیسے یہ عمارت عام آدمی کو سرو کرنے میں ناکام ہے، اسی طریقے سے یہ سبز ہلالی پرچم کی حرمت کو قائم کرنے میں بھی ناکام نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق وہ تمام لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعوے دار ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کے اکرام کو یقینی بنائیں گے، اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ تاریکی پڑھنے سے پہلے پرچم کو اتار لیا جائے۔ ناظرین، ٹاؤن ہال میں وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کی بے حرمتی صرف تاریکی اور تاریکی کے سایوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ دل گرفتہ ہے، تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک کے پرچم یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور کسی کا پرچم پھٹا نہیں ہوا۔ یہ ٹاؤن انتظامیہ نے obviously خود لگائے ہوئے ہیں، ان کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں، تمام پرچم ٹھیک ہے، لیکن وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم ایک اور بھی یہاں موجود ہے۔ آپ بدقسمتی سے یہ دیکھ سکتے ہیں، شکست و ریخت کا شکار، تکلیف، پریشانی، بدبختی عیاں ہے۔ اس تمام چیزوں کو دکھانے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم وطن عزیز کے یوم آزادی کے موقع پر اپنے عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ ہم صرف دستبستہ درخواست کرنا چاہتے ہیں ذمہ داران سے کہ جناب اگر اس وطن عزیز کی حرمت ہے، اس سبز ہلالی پرچم کی حرمت ہے، تو آپ کی کوئی حیثیت ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے، اور اگر نہیں ہے تو وی آر نو ویئر۔ تو فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ جہاں وطن ہوگا وہیں ہم ہوں گے۔ مراد سعید صاحب، آپ نوجوان بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دل کی تار بھی گمان کیے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ آپ کے زیر انصرام کام کرنے والا محکمہ ڈاک کا سب سے بڑا دفتر لاہور میں ہے، اور یہاں بھی آپ کے اور ہمارے محبوب وطن عزیز کے پرچم کی حرمت کو تاریکی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ چلے ایک لمحے کے لیے آپ کے پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب کے دفتر کا دورہ ہی کر لیتے ہیں۔ میرے عقب میں پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب کا آفس ہے، یعنی ان کا دربار ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور سرکاری امور ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا بدبختی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 فلیکسز لگائی گئی ہیں جو کہ سبز ہلالی پرچم اپنے اوپر سموئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوائٹ فائن فلیکس آپ اتار نہیں سکتے، لیکن جو ایس او پیز ہے، قانون ہے سبز ہلالی پرچم کے حوالے سے، اگر وہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو بالکل اس کے ساتھ 2 پرچم اس جانب اور 2 پرچم اس جانب موجود ہیں، اور دونوں قانون کے مطابق اور لاہور ہائی کورٹ کے اعلیٰ فیصلوں کے مطابق وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کی بے حرمتی پر مبنی ہے۔ دوبارہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور خصوصی طور پر وزیر موصوف مراد سعید صاحب کے لیے کہ میری اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے، میرے وطن عزیز کا قانون کہتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے بھی، کہ جناب اگر شام سے پہلے وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کو اتارا نہیں جاتا، اس پر تاریکی کی پرچھائیاں پڑتی ہیں، تو یہ قانون کے مطابق قابل سزا جرم ہے۔ میوزیمز اقوام کی ثقافتوں کا ذخیرہ گمان کیے جاتے ہیں۔ لاہور کے میوزیم کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، لاہور میوزیم ثقافت کا امین، جہاں پر
वतन अजीज की और इस खत्ते की सकाफत मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस और एहतराम और हुर्मत का मामला यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नजर आता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर भी सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है और रात तकरीबन 12 सवा 12 का वक्त हो चुका है और ये परचम मगरिब के साथ ही फोल्ड करके उतार के रख लिया जाना चाहिए था, ताकि नमाज फजर के साथ ही इसको लहराया जा सकता, जो वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम का तकद्दुस है और कानून भी यही कहता है। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि आप लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट जो पहलू है इसको लिया है, जो कि नॉर्मली नज़रअंदाज होता रहा है। आईने पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है वो सिर्फ फ्लैग एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है या उस पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ, वो हमारी उमंगों का आकाश है। और तमाम बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की हैं या निजी हैं, वहाँ पे कानून के मुताबिक ये परचम सिर्फ उसी वक्त लहराया जा सकता है जब उस बिल्डिंग में मुकीम जो है, जो मोहतरम अफसर है, वो वहाँ पे मौजूद हो। अगर वो मोहतरम अफसर नहीं है तो वो जो परचम वो नहीं लहराया जा सकता। मिसाल के तौर पे जो लाहौर सेक्रेटेरिएट है, अगर वहाँ पे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी मौजूद है तो फिर वो परचम जो है ना वो होस्ट किया जाएगा, लहराया जाएगा। जब चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो नहीं लहराया जाएगा। रात को अगर लहराते हैं तो वो गलत है, नहीं लहराया जाना चाहिए, ये परचम की बेहुरमती में आएगा। और इस पे सेक्शन 123B PPC बड़ा क्लियर है। स्टॉल आपके जी कितने अरसे से लगाते हैं स्टॉल? माशाल्लाह तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे यहाँ पे बेसिकली भी, और यहाँ पे मैं काम भी करता हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में 8 बजे दुकान बंद, उसके बाद दुकान से बाहर स्टॉल, बिल्कुल सही, यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, क्या क्या चीजें यहाँ बेचते हैं आप? हमारे पास बेसिकली झंडा है, बैचेस हैं, लाइट बैच है, लाइट वॉच है। किस किस मुल्क का झंडा बेचते हैं? पाकिस्तान का ही है, और तो किसी मुल्क का नहीं है? और किसी मुल्क का नहीं। पक्की बात है? एक आधा झंडा है ये बेसिकली ना प्रिंट है। ये किसका है? मसलन ये कलर वाइज पाकिस्तान का झंडा तो ये वाला है ना? ये वाला झंडा है, ये है ना जी। तो ये किसका आप बेच रहे हैं? बेच नहीं रहे, बस प्रिंट हुआ है, कस्टमर सजा के रखा हुआ है। कस्टमर की डिमांड है कि यार हमें कलर वाला चाहिए। कब कस्टमर ने डिमांड की है? अक्सर आते हैं कस्टमर, कहते हैं जी हमें मसलन मल्टी शेड में चाहिए। आपको पता है कि ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है? हमें तो पता है, लेकिन आप कस्टमर को कैसे समझाए? एक कस्टमर को बात करो, वो आगे कहता है यार आप मतलब कि हमें ये बात क्यों कर रहे हो? नहीं, कस्टमर को आप कहें कि नहीं है, वो कहता है ठीक है मैं कहीं और पता कर लेता हूँ। हम तो मना, वो सिर्फ इतना कहता है। आप बेचते हैं, मना तो नहीं आप करते ना सर? हमारी तो आपने तो सबसे पहले ये वाले झंडे रखे हैं जो पाकिस्तान के हैं ही नहीं। आपको पता है कि अदालत ने बकायदा हुक्म दिया रिसेंटली कि ये झंडे इलीगल है, ये नहीं बिक सकते। जश्न आजादी मुबारक, और झंडा तो हमारा है ही नहीं है। अदालत का हुक्म कोई माने रखता है नहीं रखता? बिल्कुल सही बात। कभी किसी ने यहाँ आके पूछा? मुझे, मेरा मकसद आपको डिस्ग्रेस करना नहीं है, मेरा मकसद ये रियलाइज करवाना है कि ये परचम जो पड़े हैं ये पाकिस्तान के झंडे नहीं है। हमें अपने झंडे का, अपनी जनरेशन को हम क्यों गुमराह करते हैं? ये झंडा हमारा है ही नहीं। हमारा झंडा ये वाला है, सब्ज हिलाली परचम, ये वाला। बिल्कुल सही, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही। ये झंडे यहाँ नहीं बिकने चाहिए। कभी कोई महकमा, कोई इदारा आया, किसी ने आके आपको बताया कि भाई हमारा झंडा कौन सा है, कौन सा नहीं है? नहीं। हमें अपने बच्चों को अपना असल झंडा बताना चाहिए। सही कह रहे हैं, बेशक कोई शक नहीं। तो गलत बात तो नहीं कर रहे ना? अदालत का हुक्म आ गया, कानून का हिस्सा है, इसके बावजूद हम ख्याल नहीं करते। सही कह रहे हैं आप। क्यों सर? सही कह रहे हैं आप। गलत बात है? सही है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये किस मुल्क का झंडा है? ये मल्टी हमारे मुल्क का झंडा नहीं है। हमारे मुल्क का नहीं है ना? ऐसे ही। तो 14 अगस्त पर इसको क्यों बेचा जा रहा है? सर, यहाँ के कुछ माफिया लोग हैं जो ये छापते हैं और आपको शायद नॉलेज में नहीं है। छोटे बच्चे जो से है ना,
इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। जब उनको ये दिया जाएगा, फटे पे पड़ा नजर आएगा तो ही वो खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नजर ही पाकिस्तान का परचम आएगा, आप अभी 500 मुल्कों के परचम लाके या फिर 100 मुल्क के लाके रख लें तो लोग अपनी मर्जी से पसंद करना शुरू कर देंगे। ये अवेलेबल ही क्यों है? बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि ये उर्दू बाजार की माफिया है। जो प्रिंटर्स हैं वो जानबूझकर छापती है और दुकानदारों को कहती है सबस के साथ ये भी आप हमारा परचेज करें। अच्छा, अगर आप वो परचेज नहीं, ये परचेज नहीं करेंगे तो सबज नहीं मिलेगा। जाहिर है कुछ लोगों को उधार माल मिलता है, जो उधार माल लेते हैं उनको उसकी मानदी भी पड़ती है। वेरी गुड। जिला इंतजामिया उस्मान बुजदार साहब और इमरान खान साहब, ये बात जो इन्होंने कही है ये लम्हा फिक्री है कि प्रिंटर जिस वक्त परचम वतन अजीज का कागज पर छापता है झंडी के तौर पर, तो ये 7 झंडियां अगर आपने उधार माल लेना है तो आपको ये मल्टी कलर झंडियां उठानी पड़ेंगी। मुख्तलिफ रंगों में ये झंडियां हैं। ये वतन अजीज की झंडियां नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक इसको समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान का परचम सब्ज हिलाली परचम है। आप बैजेस बेचना चाहते हैं आप बेचें, लेकिन वतन अजीज के परचम के असल चेहरे को कतई मस्ख ना करें। अच्छा नाज़रीन, ये एक प्रिंटिंग प्रेस है और प्रिंटिंग प्रेस आम लोगों के लिए जो नहीं जानते अंग्रेजी को, उनके लिए एक छापा खाना जहां पर छपाई का काम होता है, यानी मुख्तलिफ कागज के ऊपर कोई भी चीज छापी जाती है। उर्दू बाजार में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वतन अजीज का सब्ज हिलाली परचम। हम सब्ज हिलाली परचम के साथ साथ जो सलूक हो रहा है वो दिखाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए भाई एक मिनट। ये पैरों में क्या आ रहा है सारा? ये किसका परचम है? ये दुश्मन का तो नहीं है कोई? नहीं, जो पैरा है रोल रहे गए, आपको पता है नहीं जुर्म है। जब एक काम हम करते हैं तो फिर उसको सलीके से करना चाहिए। आए ना, एक मिनट। ये तो हो गया, इसको पकड़े। बदकिस्मती, ये तो हो गया हमारा एजेंडा सबज हिलाली परचम। एक बाबू ये किसका है? हाँ मुझे नहीं मार छापी दे आ रहे हो? एक मिनट, ए किंदा है? ये भी नहीं मार तो फिर कब तो छाप रहे हो भाई? ए किंदा है? ए पीला आ गया। ये किसका है? नहीं मार, ये तो मजाक है ना। कैमरा अंदर लेके ये पूरा तोड़ा पड़ा है। ये एक तोड़ा नहीं है, ये दुकानें भरी हुई हैं इन रंगीन झंडियों के साथ, जिनका हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक मस्क शुदा चेहरा है। आप ये देख सकते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत अच्छी है? क्या नाम है? ये पकड़ेंगे? ये झंडे किन देना? ये मुझे एक एक करके बताते जाए। नीले वाला किसका है? ये मल्टी में नहीं, किसका है? मल्टी को मुल्क का नाम है? नहीं, ये रंग में मल्टी है ना। एक मिनट, ये लाल किसका है? पता नहीं किसका। पीला किंदा है? किसी का नहीं है। 14 अगस्त पे तो पाकिस्तान का परचम छपना था ना। पाकिस्तान का परचम कौन सा है? या पकड़ ले। सबज है ना। तो एक तो छापी जा रहे हो। चलें, जब आप छापेंगे तो बाहर बिकेंगे, जब बाहर बिकेंगे तो अदलिया के ऑर्डर्स, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप ये बताएं कि लोग क्यों लिख लेते हैं? ये क्या लिख लेते हैं? ये क्यों खरीदते हैं लोग? क्योंकि आप बना के मार्केट में रखते हैं। हम बनाते हैं, लोग ना कहें। क्या मतलब यार? वैसे अजीब सी मंतक नहीं है, शर्म आनी चाहिए ऐसी मंतक पेश करते हैं। मैं मानता हूँ ये स्ट्रेंज है और गलत है। मैं मानता हूँ, मानो खुले सीने से कि गलत कर रहे हैं हम। मैं मानो गलत है, ठीक है। एक को ना कौन सी दुनिया? एक सेकंड, आप कोई करेंगे जो छाप रहे हैं भाई? आप लोग ही छाप रहे हैं ना। हम कटिंग कर रहे हैं। छापा खाना किसका है? ये पता नहीं किसका है। नाम क्या है उसका? ये कटिंग और ये इधर, ठीक है। यहाँ पे छापते नहीं है। कटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रिंटिंग ना, कि नहीं है ऐसा? कटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रिंटिंग, देन व्हाट? फिर दलील किस बात की है यार? खुदा का नाम, देखो पता क्या बात, एक चीज गलत हो गई ना तो हमें खुले सीने के साथ कहना चाहिए हाँ ये गलत है। फिर दूसरी बात पे आगे दूसरी बात पे। अच्छा जी, कानून ये कहता है कि सब्ज हिलाली परचम का एक तकद्दुस है। उस तकद्दुस के मुताबिक उसको कदमों में नहीं रोलना चाहिए, पांवों के साथ नहीं लगना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मेरी भी बदकिस्मती है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। ये मेरी भी बदकिस्मती है, मेरा भी। इधर तो बन रहा है ना, इधर तो बन रहा है ना। अच्छा, बाजार में जाए आप, वहाँ क्या हो रहा है? मुहर्रम चल रहा है, सड़े आम बाजे बज रहे हैं, ऐसे ही है। हम मुसलमान हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है, मुसलमान है, हमें चाहिए कि एहतराम करें इस चीज का। वो हम नहीं रोक रहे, यहाँ पे आ गए हमें इसका रोक रहे हैं। ये क्या नाम क्या मेरे भाई का? जवाद हुसैन।
जवाद हुसैन जी जी 3 साल सजा है इस काम की, सजा है ना? तो उस चीज भी सजा रखनी और भाई उसको मामला ही वो मुख्तलिफ है, उसमें हम सब नालायकी कर रहे हो तो हमें एहतियात करनी। मैं तो नहीं कर रहा ना बाजी बजा रहा सर, एक सेकंड, मैं तो नहीं ना कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, बराबर हो गया। अब हम इस पे बात कर लें, बड़ी मेहरबानी सर। सही मजाक है वैसे कि जब किसी की नालायकी की बात करो ना, बजाय उस पे कि हम गलती कर रहे हैं फौरी तौर पे कि जो मजहब चीते हो रहे हैं ना भाई वो भी गलत हो रहा है। खुदा के बंदो कितनी उम्र गुजार दोगे इसी तरह से। अच्छा एक चीज बताएं, बुरा ना मनाइएगा, सब्ज रंग ये देखें ना आप खड़े हुए ऊपर, इसको उठा ले ऊपर, सबज झंडा उठा ले, बाकी छोड़ दो, सबज झंडे साइड पे एटलीस्ट कर दें। अच्छा ये जो पाकिस्तान के परचम में सबज रंग है इसका मतलब क्या है? ये हमारी निशानी है। किस चीज की निशानी हो? अमन इसकी हमारा कौमी रंग है ना। कौमी रंग क्या मतलब? सफेद रंग किस चीज की सफेद रंग अमन की निशानी? निशानी है, यानी कि ये दूसरे खिलतों की निशानी देता कि अमन होता है इसमें। अब मैं आपको वजह बताता हूँ, पढ़ी लिखी बात थोड़ी सी कर लेते हैं ना। जब हम इस सबज रंग को बदल देते हैं ना तो उसका फर्क क्या आता है? ये जो आपने एक शीट पड़ी हुई है इसमें ये जो सबज रंग है ना ये है मुसलमानों की नुमाइंदगी, ये जो सफेद रंग है ये अकलियतों की नुमाइंदगी है। अब जब आप सबज रंग को बदल के नीला पीला खट्टा और पता नहीं जम्मू शमू केड़े रंग दे कर दोगे तो वो मुसलमानों की नुमाइंदगी उस झंडी उस परचम से खत्म हो जाती है। अब आपको समझ आई? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मकसद क्या है जी कि जिम्मेदारान को बताएं कि ताड़े भी कोई काम है गिने, कोर्ट्स ऑर्डर दे देती हैं, कानून वाजे तौर पर बता देता है, लेकिन जिम्मेदारान लंबी तान के सोए होते हैं। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें कि सरकारी इमारत पर कौन कौन सी नालायकी होती है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन यह आवे का आवा ही बिगड़ा। आप किसी को कायल करना चाहेंगे ना तो इट इज अ हरकुलेन टास्क, इट इज अ हरकुलेन टास्क।